So we will start with new chapter, that is ray optics. So I hope ray optics का theory आपका अच्छे से revise करके ही आए हो. I hope you have revised ray optics theory and it is important chapter. So let us start with first question and as and when जहाँ जहाँ पे formulas की requirement होगी वहाँ बता दूंगा मैं. A ray of light strikes a transparent rectangular slab of refractive index √2 at an angle of incidence of 45 degree. The angle between reflected and refracted ray is. So question easy है. हमारे पास what do we have is we have a transparent slab. So we have a transparent slab. और इस transparent slab पे you have a ray of light which is incident. तो आपको बताना चाहिए what are normal laws of reflection and refraction. So this is the incident radiation, incident ray. Point of incidence पे light will be partially reflected and it will be partially refracted. क्योंकि transparent slab है, that is why the ray of light will be partially reflected and partially refracted. And when the ray of light is going from rarer to denser, it bends towards normal, so it bends towards normal, something like this, right? अब ये है angle of incidence I, which is 45 degree, क्योंकि बोला है यहाँ पे light ray strikes at an angle of 45 degree. ये है angle of reflection, which will be again I. क्यों? क्योंकि laws of reflection के according, if the reflection is in the same medium, air से आया air में गया, तो angle of incidence equal to angle of reflection. और ये है angle of refraction R. तो याद रखना angle of incidence और angle of reflection equal होता है if the light is reflected in the same medium. यहाँ तक पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा. आपको पूछा है what is the angle between reflected and refracted beam. ये एंगल आपको पूछा है. Let us call this angle as x. करेक्ट. तो x पूछा है, सिंपल है. What is I plus x plus r? कितना? 180. I plus x plus r is 180. इसमें से आपको I पता है कितना? 45 है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको बता दिया था 45, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे आ गया 45. तो x इक्वल टू 180 माइनस r माइनस I, मतलब 180 माइनस r माइनस 45. r मिल गया तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व. व्हाट इज स्नेल्स लॉ? μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R. तो याद रखना बाय रूल, अगर आपको क्वेश्चंस में गड़बड़ नहीं करनी है तो बाय रूल जहां से लाइट आ रहा है उसको बोलेंगे मीडियम 1, जहां पे लाइट जा रहा है उसको बोलेंगे मीडियम 2. तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इनटू साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 1 व्हिच इज sin I इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इनटू साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 2. मीडियम 1 कौन सा था? एयर. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1. साइन 45, साइन ऑफ 45 इक्वल टू μ2. μ2 मतलब मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कितना है? √2. तो μ2 इज √2 साइन ऑफ r. व्हाट इज साइन 45? 1 by √2. तो 1 by √2 into 1 by √2 is 1 by 2. r की वैल्यू 30 degrees. This is 30 degree. So therefore x equal to 180 minus r, which is 30 minus 45, 75 और 180. तो 180 minus 75 is 105 degree. 105. Option number C. Next question. A ray of light is incident on a thick slab of glass of thickness T. हमारे पास एक thick glass slab है जिसका thickness हमको T दिया है as shown in figure. The emergent ray मतलब जो बाहर निकलेगा रिफ्रैक्शन होने के बाद, 2 बार रिफ्रैक्शन होने के बाद, emergent ray is parallel to the incident ray but displays sideways by a distance d. If the angles are small, then this sideways distance d is. तो पहले हम इसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देखेंगे, not much.
तो व्हाट हैपेंस इज, आपको पता होना चाहिए, व्हेन यू हैव अ ग्लास स्लैब, बड़बड़ करना बंद कर दो, व्हेन यू हैव अ ग्लास स्लैब and when you have a light incident on this, जैसे ही लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम गया, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, समथिंग लाइक दिस। ये हो गया इसका पहला रिफ्रैक्शन। सो द लाइट इज अंडरगोइंग रिफ्रैक्शन फर्स्ट एट द अपर फेस, अपर सरफेस। इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करके दिखा देता हूं, तो यू विल अंडरस्टैंड डिफरेंट एंगल्स हियर। ऐसा दिखा देते हैं, नॉर्मल है। Then again you have a normal over here. Second opposite phase पे, second phase पे light is traveling from denser to rarer, it bends away from normal. तो overall if you see, जो original direction of light था, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट को ये जो emergent ray होता है, it goes parallel. ये जो मैंने लाइन दिखाया है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो लाइन है, दिस लाइन ओवर हियर, ये ओरिजिनल डायरेक्शन है। तो एमर्जेंट रे, ये अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो एमर्जेंट रे ओरिजिनल डायरेक्शन को जाता पैरेलल, पर पैरेलल गया क्या? नो। सो देयर इज शिफ्ट। तो कितना शिफ्ट? किसी भी दो रेज में डिस्टेंस निकालने के लिए एक रे से दूसरे रे पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। तो ये जो शिफ्ट हुआ, इसको आप बोलते हो लैटरल शिफ्ट, राइट? तो रिमेंबर, ग्लास स्लैब नहीं होता तो रेड लाइन के डायरेक्शन में रे जाता, लेकिन ग्लास स्लैब होने की वजह से दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है, मतलब जो एमर्जेंट रे है इट इज पैरेलल टू द ओरिजिनल डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड एज शिफ्ट। तो शिफ्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एंड बाय द वे, दिस टी इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो शिफ्ट इज टी sec r sine of I minus r, right? Where r is angle of refraction, ये है angle of refraction और ये है angle of incidence. Good. तो you must know this formula. बहुत सारे बुक्स में इसको लिखने का तरीका अलग है। इसको बोलते हैं t upon cos r. It's the same thing, right? Sine of delta. What is delta? Remember, ओरिजिनल डायरेक्शन के कंपैरिजन में रिफ्रैक्टेड रे जितना बेंड हुआ उसको बोलते हो डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल आई है, ये टोटल एंगल पे कितना आएगा? आई, मतलब आई इक्वल टू आर प्लस डेल्टा। तो आई इक्वल टू आर प्लस डेल्टा, तो डेल्टा कितना? आई माइनस आर। तो डेल्टा मतलब आई माइनस आर। तो बुक टू बुक लिखने का तरीका अलग है, तो यू नीड टू रिमेंबर वन ऑफ दिस फॉर्म। तो याद रखो, t sec r sin of I minus r, या फिर t upon cos r sin of delta, या फिर t upon cos r sin of I minus r। सिर्फ हमें जो क्वेश्चन दिया है, ये स्लैब हमने हॉरिजॉन्टल रखा था, इन्होंने इसको वर्टिकल रखा है। फॉर्मूला में देयर इज नो चेंज, फॉर्मूला वही रहेगा जो था। तो फॉर्मूला क्या था? t अपॉन cos r, मैं जानबूझ के cos लिख रहा हूं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, sin of I minus r. अब you must know for small angle, what is the value of sin theta for small angle? Theta. What is the value of cos theta for small angle? 1. कहाँ से आया? तो ये भी पता कर लो, क्योंकि आगे लग सकता है आपको। नॉर्मली sin थीटा को आप लिख सकते हो सीरीज एक्सपेंशन, सीरीज टर्म्स में, थीटा रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस थीटा रेज टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल plus theta raised to 5 upon 5 factorial minus theta raised to 7 upon 7 factorial and so on. So what do you see is only odd powers upon factorials. If theta is small, example theta की वैल्यू 10 पावर माइनस 2 अगर होगी तो ये 10 पावर माइनस 2 का क्यूब, मतलब 10 पावर माइनस 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल। व्हाट इज 3 फैक्टोरियल? 6। तो 10 पावर माइनस 6 by 6, वेरी स्मॉल नंबर। तो ये निग्लेक्टेड, ये भी निग्लेक्टेड, ये भी निग्लेक्टेड, सारे हायर ऑर्डर टर्म्स निग्लेक्टेड। तो पहला टर्म कितना बचा? थीटा रेज टू 1, एनीथिंग रेज टू 1 इज 1। सो थीटा इज स्मॉल, sin थीटा becomes approximately equal to थीटा, थीटा रेज टू 1 मतलब थीटा। सिमिलरली cos की जब बात करोगे तो यहाँ पे कौन से पावर है? ऑड, तो वहां कौन से होंगे? इवन।
इवन कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। थीटा रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, थीटा रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, थीटा रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। हायर ऑर्डर टर्म तो मैंने निग्लेक्ट कर दिया फॉर द सेम रीजन, इफ थीटा इज स्मॉल higher order terms can be neglected. Higher order terms can be neglected because they are very small. तो अगर higher order terms can be neglected sin के केस में है तो cosine के केस में भी है। थीटा रेज टू 2, थीटा रेज टू 4, थीटा रेज टू 6 सब neglected, तो क्या बचा? सिर्फ पहला टर्म। Anything raised to 0 is 1. 0 factorial is 1. 0 factorial is not 0, it is 1. तो 1. तो फॉर स्मॉल एंगल व्हाट इज कॉस ऑफ थीटा? 1। अब इन्होंने क्लियरली मेंशन किया इफ द एंगल्स आर स्मॉल। एंगल स्मॉल का मतलब इफ एंगल्स आर स्मॉल, अगर एंगल स्मॉल है तो साइन ऑफ आई माइनस आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई माइनस आर। Sin theta is theta, theta is I minus r in this case, and cos r is equal to 1. तो सब्स्टिट्यूट कर दो, therefore what you will get is d equal to t upon 1 क्योंकि cos r is 1 and I minus r. Look at the option, है क्या? बाहर क्या है? RT, राइट? तो R अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं, इफ आई टेक R कॉमन या फिर इफ आई टेक I कॉमन, IT भी कहीं था, IT भी है, तो इफ आई टेक I कॉमन तो यहाँ क्या बचेगा? 1। यहाँ क्या बचेगा? R अपॉन I। तो IT 1 माइनस R अपॉन I, ऑप्शन नंबर C। डन। तो आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन वंस अगेन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले बेसिक आइडिया क्लियर रखो। बेसिक आइडिया ये है, हमारे पास एक स्लैब है, पहले मैंने हॉरिजॉन्टल दिखाया था, अब मैं उसी को वर्टिकल दिखा रहा हूँ। इट्स द सेम थिंग, सिर्फ आप इसको ओरिएंट कैसे कर रहे हो, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो मेरे पास एक स्लैब है विच इज लाइक दिस। नाउ लेट अस ड्रॉ अ नॉर्मल हियर, नॉर्मल टू दिस, समवेयर नॉर्मल, यहाँ पे आई विल ड्रॉ नॉर्मल हियर। हमारे पास एक रे ऑफ लाइट था विच इज इंसिडेंट हियर, तो ये आ गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, करेक्ट। अगर ये स्लैब नहीं होता है बट नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट जाता स्ट्रेट, तो दिस रे ऑफ लाइट विल गो स्ट्रेट। अगर नहीं होता तो ओके, देन बट बिकॉज देयर इज स्लैब, light will bend because light is traveling from rarer to denser, and when light travels from rarer to denser it bends towards normal, so it bends towards normal like this। यहाँ पे वापस से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, राइट। तो नाउ लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब हुआ क्या, ओरिजिनल डायरेक्शन के कंपैरिजन में एमर्जेंट रे ये पैरेलल है, मतलब शिफ्टेड है, तो ये शिफ्ट इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। तो ये जो है ये लैटरल शिफ्ट हो गया, कितने अमाउंट से शिफ्ट हो गया? d अमाउंट से। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था I, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R, राइट। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, करेक्ट। ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा मतलब द अमाउंट बाय विच द लाइट इज बेंडिंग, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायरेक्शन। ओरिजिनल डायरेक्शन के कंपैरिजन में कितना रिफ्रैक्टेड रे बेंड हुआ, दैट इज डेल्टा। और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से कितना बेंड हुआ, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो ये एंगल और ये एंगल होगा इक्वल, क्यों? वर्टिकली अपोजिट। तो व्हाट यू कैन सी इज I equal to R plus delta, तो delta equal to I minus R if T is the thickness of the slab। तो the shift D, ये जो shift है D, this turns out to be T upon cos R sin of I minus R। अब बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा ये आया कहाँ से? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, कुछ नहीं है, ये दो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, एज यू कैन सी। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है। इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में से साइन और कोसाइन यूज करना है। यहाँ पे कोसाइन यूज करना है। व्हाट इज कोसाइन? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया एडजेसेंट विच इज थिकनेस ऑफ द स्लैब, क्योंकि एडजेसेंट इज
थिकनेस ऑफ द स्लैब, ये हाइपोटेन्यूस है, ये अगर आई है, इफ दिस इज आई, यू शुड नो ये 90 डिग्री है. व्हाट इज दिस एंगल? 90 माइनस आर, राइट? तो दिस बिकम्स चलो ठीक है, वो भी नहीं अगर, तो यू मस्ट सी, मैंने वहां लिखा था साइन डेल्टा, तो साइन डेल्टा कहां से लाओगे? हाउ विल यू सॉल्व? यू हैव डेल्टा, दिस इज डेल्टा, राइट? तो करना क्या है आपको, सिर्फ मैं हिंट देता हूँ, सॉल्व आप करोगे, बिकॉज वी विल नॉट गो इनटू थ्योरी. कॉस आर दिख रहा है ना, एक बार कॉस ऑफ आर लो, विच इज थिकनेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? देन once you have to take sin of delta, क्योंकि वहां पर sin of I minus R है, उन दोनों को कंपेयर करोगे तो you will get D. You see this is also right angle triangle. So what is sin delta? Opposite side upon hypotenuse is again the same. तो ये hypotenuse आ गया वापस से, इन दोनों का यूज करना है, इन दोनों को यूज करोगे तो D मिल जाएगा, मिल गया D है एक्चुअली. What is D? Hypo into sin delta. So D is hypotenuse into sin delta. What is hypotenuse? P upon cos R. तो स्टेप्स को फॉलो करो, स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब समझेगा. cos R क्या आया था हमारे पास? What is cos R? Quick. P upon hypotenuse. तो hypotenuse क्या आ गया? P by cos R. साइन डेल्टा क्या आया? D अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? करेक्ट. तो ये D इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू साइन डेल्टा. व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? T अपॉन cos R. साइन ऑफ डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा? I माइनस R. बन गया फॉर्मूला. तो ये फॉर्मूला ऐसा बनता है, ये पता होना चाहिए. यू आर नॉट एक्सपेक्ट टू डिराइव दिस, बट यू शुड नो दिस. अब अगर एंगल स्मॉल होंगे, तो cos r की वैल्यू होती है 1, साइन ऑफ I माइनस R हो जाता है ओनली I माइनस R. I कॉमन निकाल लिया, तो पहले टर्म में क्या बचा? 1. दूसरे में I था क्या? नहीं था, तो R बाय I. तो IT 1 माइनस R बाय I. तो दिस इज व्हाट यू गेट. ऑप्शन नंबर C. नेक्स्ट question is related to total internal reflection. A point source is placed at a depth h below the surface of water of refractive index mu. A floating opaque disk is placed on the surface of water so that light from the source is not visible from the surface. The minimum diameter of the disk is. तो सबसे पहले, even before we solve this question, you should know what is total internal reflection. तो TIR, ये फाइबर ऑप्टिक जो हम यूज करते हैं ना, 100 Mbps, 1 Gbps, 30 Mbps, ये सारा का सारा हाई स्पीड इंटरनेट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. होता क्या है? होता ये है, अगर हमारे पास, वेल बाय द वे, कंडीशन पहले समझ लो, हम क्वेश्चन पे आएंगे, बहुत काम का है क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन भी आता है इस पे. अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इफ वी हैव अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्लेस्ड इनसाइड डेंसर मीडियम, यहां से, बिकॉज ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स इमिट्स लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, तो यहां से जो रे सीधा जाएगा, इट डज नॉट बेंड. क्यों? बेंड होना चाहिए ना. whenever light is traveling from denser to rarer, it should bend away from normal, लेकिन बेंड होता ही नहीं है. क्यों? What is Snell's law? ये मीडियम 1, ये मीडियम 2. What is Snell's law? mu1 sin I equal to mu2 sin R. What is angle of incidence? What is angle of incidence? 0 की 90? 0, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल, और ये रे खुद ही नॉर्मल की डायरेक्शन में है, तो 0. व्हाट इज साइन 0? 0, क्योंकि ये 0, तो mu2 को भी शिफ्ट कर दूंगा तो mu2 खत्म, 0 by mu2 इज 0, तो sin R इज 0. व्हाट इज sin R 0 का मतलब? R इक्वल टू 0.
तो I जीरो तो R भी जीरो, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो जीरो, मतलब लाइट विल गो स्ट्रेट। अब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आया लाइट, नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हेनेवर लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट मूव्स अवे। तो यहाँ पे ये लाइट हो गया अवे। देन ये जो दूसरा रे ऑफ लाइट है, रिमेंबर व्हाट इज हैपनिंग, एंगल ऑफ इंसिडेंस से बढ़ते जा रहा है। तो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था I1, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 ये ग्रेटर देन I1 है। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा उतना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। एक स्टेज ऐसा आएगा व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस in denser medium is such that angle of refraction in rarer medium is 90। तो ऐसा स्टेज आएगा जिसमें रिफ्रैक्टेड रे विल बिकम ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब सरफेस को टच करके जाना, सरफेस को टच करके जाना। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि वन पॉइंट एट वन स्टेज व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं IC, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। अब डायमंड इतना चमकता क्यों है? इज बिकॉज लाइट व्हेन वंस एंटर्स इनटू डायमंड, वो मल्टीपल टाइम्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होता है। तो व्हाट हैपेंस इन दिस केस इज, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, if angle of incidence is greater than critical angle, there is no way light can go out and light will keep on reflecting totally internally। इसको बोलते हैं total internal reflection। कंडीशन नंबर 1, total internal reflection होने के लिए light should travel from denser to rarer। कंडीशन नंबर 2, angle of incidence must be greater than or equal to critical angle। तो ये दो कंडीशन होंगे तो ही TIR होगा। तो जो फाइबर ऑप्टिक हम लोग यूज करते हैं उसमें यही होता है, लाइट इज इंसिडेंट सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल। तो लाइट कीप्स ऑन रिफ्लेक्टिंग टोटली इंटरनली, राइट। अब इसका यूज बहुत सारी जगह पे है, मल्टीपल यूजेस, हम सब में नहीं जाएंगे, हमारे क्वेश्चन में जितना लगता है वो देख लेंगे। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट अ डेप्थ h below the surface of water, below the surface of water of refractive index mu। हमारे पास ये वाटर का सरफेस है, ये वाटर सरफेस, यू हैव अ पॉइंट सोर्स विच इज प्लेस्ड एट अ डेप्थ h। तो ये जो डेप्थ है दिस इज h। अब आगे बोला है अ फ्लोटिंग ओपेक डिस्क। व्हाट डू यू मीन बाय ओपेक? व्हाट इज ओपेक? Light cannot pass through it। तो you have a floating मतलब on the surface, तो you have a floating opaque disk here on this surface। तो हमारे पास एक floating opaque disk है, right। आगे बोला है is placed on the surface of water so that the light from the source is not visible from the surface। Light from the source is not visible from the surface का मतलब है कि the angle of incidence is equal to critical angle। क्योंकि क्या होगा, ये मैं लेता हूं, I will take this as vertical line। if this angle, अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल जितना हुआ तो लाइट विल बेसिकली क्या होगा, इट विल पास ग्रेजिंग। मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, द लाइट इज जस्ट विजिबल फ्रॉम द सरफेस। मैं जब वाटर के सरफेस से देखता हूं तो जस्ट विजिबल है। तो इमेजिन क्रिटिकल एंगल से वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा दिया, इफ आई इंक्रीज द वैल्यू स्लाइटली, राइट, फॉर एग्जांपल क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फॉर एग्जांपल 45 डिग्री है, मैंने 45 डिग्री एंड 1 मिनट कर दिया तो क्या होगा? एग्जैक्टली। तो द आइडिया हियर इज कि लाइट सरफेस से नहीं दिखने के लिए एंगल शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। तो पहले तो ये समझ लो। अब आपको पूछा है व्हाट इज द मिनिमम डायामीटर ऑफ द डिस्क। मिनिमम डायामीटर ऑफ द डिस्क, तो पहले रेडियस फाइंड कर लो।
if you find out radius, you're done. तो ये radius r, correct? तो well, what is tan of critical angle here? Tan of critical angle is opposite side upon adjacent side. Opposite is r, adjacent is h, r by h, correct? हमें फाइंड करना है मिनिमम डायामीटर, मतलब 2r फाइंड करना है. अब गोइंग बैक टू दिस स्टेज जहां पे हमें मिला था क्रिटिकल एंगल का कंडीशन. व्हाट इफ आई अप्लाई स्नेल्स लॉ हियर? ये है मीडियम नंबर 1, μ1 साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इक्वल टू μ2 साइन ऑफ 90, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है 90. μ1 is mu sin IC, μ2 is 1 क्योंकि बाहर क्या है एयर. What is sin 90? 1. So what do you have is sin IC is 1 upon mu, correct? तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा, sin IC is 1 upon mu. तो sin IC is 1 upon mu. अगर sin IC 1 upon mu है तो cos IC क्या होगा? You should know sin square theta plus cos square theta is 1. तो cos square theta is 1 minus sin square theta. 1 minus 1 by mu square, मतलब mu square minus 1 by mu square. ये cos square है तो cos आएगा अंडर रूट ऑफ mu square minus 1 by mu. जस्ट फॉर अ क्रॉस चेक, अंडर रूट है क्या? यस. हम क्यों कर रहे हैं सब? क्योंकि मेरे पास tan का एक इक्वेशन था, मुझे डायामीटर पूछा था तो रेडियस तो मिल ही गया. अब मुझे tan और एक तरीके से मिल सकता है, एंड दैट इज बाय टेकिंग साइन अपॉन cos. तो साइन IC बाय cos IC. व्हाट इज साइन IC? 1 by mu. What is cos IC? अंडर रूट ऑफ mu square minus 1 by mu. mu कैंसल. तो what do I have is tan IC, tan of IC equal to 1 upon under root of mu square minus 1, equation number 2. From equation number 1 and 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड है सेम, therefore राइट हैंड साइड भी होगा सेम. तो from 1 and 2 I will get r by h equal to 1 upon under root of mu square minus 1. r equal to h upon under root of mu square minus 1. Diameter is 2r. Diameter is 2r, so 2h upon under root of mu square minus 1. 2h upon under root of mu square minus 1 का रूट. ऑप्शन नंबर ए. तो important thing is ये derive करना is not important. Here you should know it is radius is always h upon mu square minus 1 का रूट. h upon under root of mu square minus 1. अब क्वेश्चन चेंज कैसे करते हो? अभी हमको बोला था लाइट का बल्ब है, कभी बोलेंगे कि नीचे मछली है, मछली मतलब फिश, राइट? तो दे विल टेल यू सच अ क्वेश्चन, द फील्ड ऑफ विजन ऑफ अ फिश, द फील्ड ऑफ विजन ऑफ अ फिश. हमारा फील्ड ऑफ विजन कितना है? हेमिस्फीयर, क्योंकि हम हर डायरेक्शन में 180 डिग्री देख सकते हैं. स्टैंडिंग ऑन अर्थ आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये पूरा का पूरा एक हेमिस्फीयर में आप देख सकते हो. योर फील्ड ऑफ विजन इज अ हेमिस्फीयर, करेक्ट? क्योंकि नीचे देख नहीं सकते ना, अर्थ के अंदर नहीं देख सकते हम लोग, बिकॉज देयर इज अर्थ. बट फॉर अ फिश द फील्ड ऑफ विजन ऑफ अ फिश इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ कोन. तो यहाँ पे फिश कैन सी ओनली थ्रू अ कोन, और दैट इज व्हाई आपको पता होगा कि शार्क या बाकी के जो भी बड़े बड़े स्पीसीज ऑफ फिश है वो अपने टारगेट को अटैक करने के लिए वेट करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता. अगर टारगेट यहाँ पे है, दे कैन नॉट सी, वो इस कोन के बाहर देख ही नहीं सकते, दे कैन नॉट सी आउटसाइड दिस कोन. तो उनका जो फील्ड ऑफ विजन है इज रिस्ट्रिक्टेड टू दिस कोन बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. दे कैन नॉट सी आउटसाइड, so that is why they have to wait for the target to reach within this cone. जैसे ही आए गया, right? तो बहुत बार पूछेंगे what is the area of base of field of vision of fish? What is area of base? What is base? Circle. What is area of circle? Pi r. What is r?
हाँ तो फिर हो गया पाई h स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1. व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? 4/3. हाँ तो 4/3 वैल्यू डालना एंड सॉल्व कर लेना. डन. तो दिस इज हाउ दे कैन आस्क यू सच क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. A boy of height, it is not I, it is 1 meter. A boy of height 1 meter stands in front of a convex mirror. His distance from the mirror is equal to its focal length. मतलब object distance u is equal to f. The height of the image is. So before we solve this question, of course आपने रिवाइज किया ही होगा, but just as a cross check, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम डिनोट करते हैं u से, और उससे भी पहले डू यू नो साइन कन्वेंशंस? साइन कन्वेंशंस, all the distances measured to the left of the pole are taken to be negative, all the distances measured to the right of the pole are taken to be positive, all the distances measured above principal axis positive and below principal axis negative. तो इतना पता होगा तो समझ में आएगा. तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जस्ट अ क्विक रिवीजन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होगा तो आधे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व होते हैं. पोजीशन ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब इमेज का साइज कितना है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट का साइज, आई बाई ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. फॉर्मूला बाद में देखेंगे. देन व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? व्हाट डू मीन बाय नेचर? रियल है कि वर्चुअल है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल इमेज फॉर अ मिरर ऑन द सेम साइड? जिस साइड पे ऑब्जेक्ट था उसी साइड पे इमेज बनना मिरर के केस में उसको बोलते हैं रियल. अगर अपोजिट साइड पे बना तो बोलते हैं वर्चुअल. देन हमारे पास प्राइमरीली दो टाइप के मिरर्स है. स्फेरिकल मिरर में दो टाइप है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. कॉनकेव मिरर में हम जो इनर सरफेस होता है वो यूज करते हैं फॉर रिफ्लेक्शन. तो यू हैव अ कॉनकेव मिरर, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, इनर सरफेस इज यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन. तो फोकल लेंथ डिफाइन करने के लिए सबसे पहला काम हम करते हैं, रिमेंबर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू डिफाइन व्हाट इज फोकल लेंथ. ऑफ कोर्स हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है. व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू पोल. व्हाट इज पोल? सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो सेंटर है. एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये जो कर्व सरफेस है उसका सेंटर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. एक जो जितना भी मिरर हमारे पास है, कितना मिरर है यहां से लेके यहां तक, इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा उसको बोलते हैं पोल ऑफ अ मिरर. अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू center of curvature and pole is called as principal axis of mirror. अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है which is at infinity, remember an object at infinity, the rays coming from object at infinity are parallel to each other. rays एक दूसरे को पैरेलल होंगे, एक दूसरे को होंगे, वो तो ऐसे भी हो सकते थे ना फिर, राइट? उसको बोलते हैं पैरेलल रेज. लेकिन इन एडिशन अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस को भी पैरेलल है तो उसको बोलते हैं पैराएक्सियल. तो पैरेलल टू ईच अदर एंड पैरेलल टू एक्सिस, पैराएक्सियल. तो ये जो मिरर है वो मिरर कौन सा सिस्टम होता है? रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग? रिफ्लेक्टिंग. तो रेज coming from an object, which rays? Paraxial rays coming from an object at infinity, they converge after reflection and the point of convergence is called as focus, right? तो ये फोकस है, ये f. पोल से फोकस तक का डिस्टेंस को बोलते हो फोकल लेंथ. तो रिमेंबर दिस इज f. एंड फॉर मिरर not for lens, for mirror, f equal to r by 2, where r is distance from center of curvature to pole. ये याद रखना. अब अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बना? फोकस पे बना. सिंपल. तो इफ यू हैव ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, मतलब u इज इक्वल टू इंफिनिटी, v इज इक्वल टू f. तो इफ u इज इंफिनिटी, v is equal to f, image is formed at focal point, so distance is focal length. Then ऑब्जेक्ट का साइज कुछ भी हो, इमेज बना पॉइंट में, तो उसको बोलते हैं पॉइंट डिमिनिश्ड.
तो मैग्निफिकेशन इज वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब पॉइंट डिमिनिश्ड है, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज जो भी हो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट द इमेज फॉर्म्ड इज पॉइंट साइज, राइट. नेचर रियल, रियल, inverted and diminished, of course real, inverted and diminished, तो पता ही है वो, तो ठीक है. Then and diminished, okay. Then point diminished, actually real, inverted and point diminished. inverted मतलब उल्टा इमेज बनता है. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास में लाते हो वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर जाता है. द मोमेंट यू ब्रिंग ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द मिरर, इमेज गोज अवे. अब अगला पोजीशन ऑब्जेक्ट का क्या हो सकता है? एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर. इसको बोलते हैं u ग्रेटर देन, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? r. लेकिन मैंने अभी बताया था f इक्वल टू r/2, तो r कितना? 2f. तो u इज ग्रेटर देन 2f, मतलब बियॉन्ड c, सेंटर के बाद रखा है, मतलब u ग्रेटर देन r है, लेकिन बोलने के लिए क्या बोलते हैं? u ग्रेटर देन 2f. तो अब इमेज कहां बनेगा? बिटवीन फोकस एंड सेंटर. इमेज बनेगा बिटवीन फोकस, मतलब इमेज का डिस्टेंस ग्रेटर देन फोकल लेंथ एंड लेस देन रेडियस. लेस देन रेडियस मतलब 2f. तो इमेज इज फॉर्म बिटवीन f एंड 2f. स्टिल यू हैव m लेस देन 1 डिमिनिश्ड. तो अभी भी रियल है, अभी भी इन्वर्टेड है, और अभी पॉइंट नहीं लेकिन डिमिनिश्ड है. देन विच इज द नेक्स्ट पोजीशन दैट यू कैन हैव इज सेंटर. तो सेंटर पे जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो, मतलब 2f पे रखते हो, तो इमेज भी वहीं बन जाता है, और ये आ जाता है इक्वल टू 1, मतलब रियल भी है, इन्वर्टेड भी है एंड सेम साइज है. गुड. देन अब अगला पोजीशन है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब उल्टा. ये उल्टा तो ये भी उल्टा. पहले ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी, इमेज बना बिटवीन फोकस एंड सी, मतलब बिटवीन f एंड 2f. अब ऑब्जेक्ट है बिटवीन f एंड 2f, तो इमेज कहां बनेगा? ग्रेटर देन 2f. रिमेंबर, मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास में जा रहा है, इमेज कहां जा रहा है? दूर दूर दूर, राइट. ऑब्जेक्ट सेंटर के आगे गया, सेंटर और फोकस के बीच में आया, तो इमेज कहां गया? सेंटर से पीछे. ये पहला ऐसा कंडीशन है जहां पे मैग्निफिकेशन हुआ. अभी भी रियल है, अभी भी इन्वर्टेड है, बट दिस टाइम इट इज मैग्निफाइड, राइट. देन ये टेबल पता है, तो आई टोल्ड यू 90% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डन इजीली. देन वापस अब कहां जाएगा? इंफिनिटी पे, करेक्ट. इंफिनिटी पे जाएगा. हाँ, ऑब्जेक्ट फोकस पे जाएगा, इमेज इंफिनिटी पे जाएगा. तो अब आपने रख दिया फोकस पे, इमेज गया इंफिनिटी पे. अभी ये हाईली मैग्निफाइड हो गया. m इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1. स्टिल रियल, स्टिल इन्वर्टेड, बट दिस टाइम इट इज हाईली मैग्निफाइड. तो हाई मैग्निफिकेशन चाहिए, तो कीप ऑब्जेक्ट एट फोकस. गुड. देन लास्ट केस, if object distance is greater than, मतलब object is between pole and focus, मतलब object distance is less than focal length. मतलब हमारे पास जो फोकल पॉइंट था, ये पोल था, ये फोकस था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया. दिस इज द ओनली केस, रिमेंबर, ओनली केस इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड मैग्निफाइड. तो यहाँ पे वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा एंड मैग्निफाइड होगा. ये सारे केसेस में से इकलौता ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है मैग्निफाइड. अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन ओरली सॉल्व होगा. और यहाँ पे इमेज बनता है इनसाइड, तो वो अभी आप देख लेना, डिस्टेंस क्या है आपको फाइंड करना पड़ेगा. ये हो गया खत्म कॉनकेव का केस. अब आ गया कॉन्वेक्स. ये थे टोटल केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर इज विच सिस्टम? कॉन्वर्जिंग. हमारे पास एक आ गया डाइवर्जिंग.
दिस इज इन दिस केस उल्टा है, रिफ्लेक्शन आप लेते हो आउटसाइड से, राइट? तो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट कॉन्वर्ज बट दे डाइवर्ज एंड दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द मिरर। उल्टा है, डाइवर्ज होता है, दिखता है ऐसा कि अंदर से आ रहा है लाइट, इस जहां से दिखता है, द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइट अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग इज कॉल्ड एज फोकस, राइट? फोकस यहाँ पे राइट साइड में है, कॉन्केव में फोकस कहाँ था? लेफ्ट साइड में। तो साइन कन्वेंशन के टाइम पे काम में आएगा। दो ही केस है, तो दो केस है, क्योंकि या तो ऑब्जेक्ट को रखोगे इंफिनिटी पे, या ऑब्जेक्ट को रखोगे एनीवेयर, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। अंदर जाके तो रख नहीं सकते ना, मिरर को थोड़ा अंदर जाके रख के आए ना, तो नहीं होता है। तो दो ही केस है, एक तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा इंफिनिटी पे, एक होगा एनीवेयर, मतलब लेस देन इंफिनिटी ग्रेटर देन जीरो, anywhere between pole and infinity, correct? Then पहले केस में जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बना? फोकस पे। या दिस इज डिमिनिश्ड इमेज। कितना डिमिनिश बाद में देखेंगे, बट अल्टीमेटली दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ पे भी इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हम बाद में यूज करेंगे, ये सब बाद में देखेंगे, राइट? तो वर्चुअल इमेज एक ही बार मैग्नीफाइड हुआ है, कहाँ पे हुआ है? कॉनकेव के केस में। और कॉन्वेक्स के केस में इमेज कभी भी रियल बनता ही नहीं है, इट इज ऑलवेज वर्चुअल। नाउ गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, अ बॉय ऑफ 1 मीटर stands in front of a convex, कौन सा इमेज बनेगा? वर्चुअल। और इमेज कभी भी मैग्नीफाइड होता है क्या? नहीं। तो इमेज 1 मीटर से छोटा ही होगा। अभी ऑप्शन में नहीं दिया है लेकिन बता देता हूं, अगर होता 1.2 मीटर तो वो आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि हियर यू विल ऑलवेज गेट diminished image. A boy of height 1 meter stands in front of a convex mirror. His distance from the mirror is equal to focal length. His distance is equal to focal length. Magnitude wise focal length equal है, height of the image is, मतलब definitely you will have to use magnification का formula, which is image size upon object size, which is minus v by u, where v is image distance and u is object distance. तो पहले तो फाइंड करो व्हाट इज v, करेक्ट? और उसके लिए आपको एक इक्वेशन होता है, मिरर इक्वेशन, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही इक्वेशन विथ माइनस साइन इन बिटवीन इज लेंस फॉर्मूला। इट इज नॉट लेंस इक्वेशन, इट इज लेंस फॉर्मूला। ये मिरर का है। पॉइंट नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर, अभी ये जो मैं बता रहा हूं अच्छे से सुन लेना, नहीं तो रे ऑप्टिक्स के सारे क्वेश्चन गलत होंगे। जो चीज फाइंड करनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखो या राइट हैंड साइड पे रखो, देन डू नॉट डिस्टर्ब। मैंने इसको रख दिया 1/v को एक साइड पे, 1/f माइनस 1/u। सबसे पहला काम ये करना, क्योंकि साइन कन्वेंशन यूज करने पड़ेंगे। और याद रखना, जो फाइंड करना है उसके लिए कभी भी साइन कन्वेंशन यूज नहीं होते, क्योंकि वो फाइंड करना है। अगर वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो आंसर में अपने आप आएगा। अगर v की वैल्यू नेगेटिव आई, जो इस केस में नहीं आ सकती, क्योंकि v नेगेटिव मतलब इमेज इज फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड, जो इस केस में होगा ही नहीं। लेकिन अगर नेगेटिव आई तो समझ जाना इमेज कहाँ बना? लेफ्ट में। पॉजिटिव आई तो कहाँ बना? राइट में। तो जो फाइंड करना है उसके लिए कभी भी साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते। तो नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशंस, using sign conventions, and definitely I told you you will not use sign conventions for v, तो 1/v को as it is। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल पॉइंट कहाँ था? राइट साइड में। तो क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 1/+f माइनस, ऑब्जेक्ट को तो हम हमेशा कहाँ रखते हैं? लेफ्ट में, तो माइनस आएगा। तो ऑलरेडी माइनस है और एक माइनस आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को रखा था लेफ्ट में। तो 1/v इज 1/f प्लस 1/, बट f एंड u मैग्नीट्यूड वाइज आर सेम। तो 1/v इज 1/u प्लस 1/u।
मतलब 1/v is 2/u, v is u/2, बट u एंड f आर इक्वल, तो f/2। ठीक है, फाइन, यहां तक ठीक है। देन हमें पूछा क्या था, हाइट। हाइट मतलब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करोगे आप, तो m, या फिर इन शॉर्ट यू कैन से m इक्वल टू -v/u। वापिस साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा, यू हैव टू डू दिस, कुछ नहीं कर सकते। माइनस ऑफ प्लस v एंड माइनस u, करेक्ट, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस माइनस प्लस v/u, बट v/u 1/2, but v/u is 1/2, but v/u was also image size upon object size, तो ये image size upon object size था, तो that is why हमको क्या मिला, हमको मिला image का size half of object का size, image size is object size by 2, object size is 1, 1/2 is 0.5, तो आएगा 0.5, ऑप्शन नंबर सी। Next question. A concave shaving mirror has a radius of curvature 35 centimeter. It is positioned so that upright मतलब erect मतलब which image is formed, virtual image is formed. Concave mirror के केस में virtual image एक ही केस में बनता है, when object is between pole and focus, मतलब object distance is less than focal length। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ने से पहले कम से कम इतना तो समझ में आ गया, ये पता होगा तो f is r/2, किसके लिए, मिरर के लिए, लेंस के लिए नहीं। व्हाट इज r, 35/2, तो कितना 17.5। अपराइट इमेज बनना मतलब वर्चुअल इमेज बनना, वर्चुअल इमेज तब बनता है जब डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ हो, मतलब 17.5 से कम, राइट। आगे बोला है अपराइट इमेज ऑफ मैन्स फेस इज 2.5 टाइम्स द साइज ऑफ फेस, मतलब मैग्नीफाइड है, और पहले हमने देख लिया था वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड एक ही केस में होता है। हाउ फार इज द मिरर फ्रॉम द फेस, फेस इज ऑब्जेक्ट इन दिस केस और मिरर इज सिस्टम, तो डिस्टेंस 17.5 से कम होगा, क्योंकि आई जस्ट टोल्ड यू virtual image and magnified is formed for concave mirror when the object distance is less than focal length, तो 17.5 से कम, मतलब ये और ये C और D, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड डी, तो B और D तो हो नहीं सकते, 21 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, तो कम से कम दो तो आपने उड़ा दिए सिर्फ देख के। देन अब ऐसा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन कितना है, 2.5 टाइम्स, बट मैग्निफिकेशन क्या था, -v/u 2.5, मतलब v कितना आया, -2.5 टाइम्स ऑफ u। अब हमें पता है मिरर इक्वेशन 1/f 1/v प्लस 1/u, करेक्ट। देन हमें फाइंड क्या करना है, रिमेंबर u फाइंड करना है हमको, u और f पता है, यस। यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन f क्या फाइंड करना था, ओके ठीक, वेट अ मिनट, बिफोर यू मेक अनदर मिस्टेक, मैंने बताया आपको एक काम करो, सॉल्व करने से पहले हमारे पास v कितना है, -2.5u, करेक्ट। हमको फाइंड क्या करना था, u, तो 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/v, गुड। देन अब जो फाइंड करना है उसका कन्वेंशन यूज नहीं करना है, तो यूजिंग साइन कन्वेंशन 1/u इक्वल टू माइनस, क्योंकि कॉनकेव का फोकल लेंथ होता है नेगेटिव, और यहाँ पे v आएगा पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव, क्योंकि ये इमेज कौन सा है, वर्चुअल, ये आ गया। अब
1/u इक्वल टू -1/f, मैं बाद में सब्स्टिट्यूट करूंगा इसको, माइनस, बट v क्या था, -2.5u था ना, -2.5। सॉल्व कर लो पहले, बाद में देखते हैं, पहले सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस, तो 1/u इक्वल टू -1/f प्लस 1/2.5u, शिफ्ट 1/u minus 1/2.5u इक्वल टू -1/f, सॉल्व कर लेते हैं पहले, बाद में देखेंगे। 1.5u अपॉन 2.5u स्क्वायर, कैंसल एंड कैंसल, 3 एंड 4 -1/f, तो u कितना आएगा, हाँ ठीक है, 3/5, ओके 3/5, तो what will be u from here, u will be what, 3/5f with a negative sign. What is f? 17.5. How about this? 2.5 to za, 2.57 za, 7 3 za 21, 21/2, 10.5 centimeter. Negative sign indicates the object is to the left. So 10.5, option number C. This is right. This is how you are supposed to solve this question. Nothing wrong. जहां जहां पे कन्वेंशन यूज करने थे वहां वहां पे कन्वेंशन यूज हुए हैं। v की वैल्यू -2.5u था तो -2.5u है, वो एज इट इज सब्स्टिट्यूट करना है कन्वेंशन यूज करने के बाद। आपका प्रॉब्लम क्या है, आपके सोचते हो नहीं लेकिन फिर ये इसको प्लस क्यों नहीं किया, हमने प्लस कहाँ यूज किया, v, लेकिन v क्या था -2.5, तो वापस इसमें कन्वेंशन यूज नहीं करना है। यू आर नॉट सपोज टू यूज कन्वेंशन हियर, सॉल्व इट एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rod of length 10 centimeter lies along principal axis of concave mirror of focal length 10 centimeter in such a way that its end, not and, its end, rod का एक end, its end closer to the pole is 20 centimeter away from the mirror, the length of the image is। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से क्वेश्चन समझ लो। हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, तो वी हैव अ कॉन्केव मिरर, इमेजिन दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर, you have an object in the form of a rod, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है इन द फॉर्म ऑफ अ रॉड, उसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो एक काम करेंगे, वी विल टेक अ रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, बाद में देखेंगे, इसको फिलहाल साइड में रख देते हैं। देन आगे बोला है it is kept along the principal axis, so there are actually two orientations in which you can keep an object। एक ऐसा रख सकते हो, तो you can keep this parallel to the principal axis। 90% 95% क्वेश्चन ये ऐसे नहीं आते, you keep object perpendicular to the principal axis। पहला क्वेश्चन ऐसा आया है ये, is in which you have parallel, object is placed parallel। आगे बोला है ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, जो मिरर है इसका फोकल लेंथ कितना, 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ मतलब यू हैव टू जस्ट मार्क डाउन सम पॉइंट्स, ये आ गया पोल, ये आ गया फोकस। अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, मतलब कितना, 20 सेंटीमीटर। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो ये आ गया आपके पास 20 सेंटीमीटर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है r, जो होता है 2f, गुड। तो r कितना, 20 सेंटीमीटर। आगे बोला है इन सच अ वे दैट इट्स एंड, किसका एंड, ऑब्जेक्ट का एंड, क्लोजर टू द पोल, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट को ऐसा रखते हो तो एक एंड, वन एंड इज क्लोजर एंड वन एंड इज फर्दर अवे। तो जो क्लोजर एंड है
वो कितने डिस्टेंस पे है, 20 सेंटीमीटर। मतलब वन एंड इज प्लेस्ड डायरेक्टली एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। अब ऐसा है, ऐसे क्वेश्चंस में, कैसे क्वेश्चंस में जिसमें ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें एक ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट मानना ही नहीं होता है। यू हैव टू इमेजिन कि ये दो ऑब्जेक्ट है, ये हो गया पहला ऑब्जेक्ट, ये हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट। तो रिमेंबर, ट्रीट दिस एज टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। नाउ आपको बेसिक बेसिक जो टेबल बताया था, अगर वो टेबल अच्छे से समझा होगा तो ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होगा। ऑब्जेक्ट नंबर वन, ऑब्जेक्ट नंबर वन कितने डिस्टेंस पे है, 20 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट नंबर वन कहाँ बना, कहाँ पे है, when the object is at center, image is also formed at the center and is of the same size. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये 20 सेंटीमीटर है, तो पहले ऑब्जेक्ट का फाइंड ही नहीं करना, करना है तो कर सकते हो, टाइम पास करना है तो बिल्कुल करो। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u यूजिंग साइन कन्वेंशन। Substitute values and solve, which I will not recommend you to solve, क्योंकि हमको पता है अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे तो इमेज भी सेंटर पे। तो इमेज डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर विथ नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि कहाँ बना, लेफ्ट में। मैं इसको फिलहाल ऐसा ही लिख रहा हूं, ये माइनस के साथ आएगा, राइट। देन I am not writing negative, I am just writing magnitude, क्योंकि मुझे लेंथ ऑफ इमेज फाइंड करना है। अब दूसरा क्वेश्चन ये था, जो दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट है, दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी। देन अंडरस्टैंड वन थिंग, डेफिनेटली ये 10 सेंटीमीटर है, तो 10 + 20 30। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सेकेंड u2 कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। अब वो 30 है, वो कितना है वो अलग बात है, बट वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो, इमेज कहाँ बनता है, बिटवीन सी एंड एफ। मतलब इसका इमेज बनेगा यहाँ पे कहीं पे। तो रिमेंबर, ऑब्जेक्ट नंबर 2 का इमेज बिटवीन सी एंड एफ होगा। इसका मतलब लेंथ ऑफ द इमेज ये लेस देन 10 होगा, क्योंकि फोकस से सेंटर है 10, तो इमेज का लेंथ 10 से कम होगा। क्यों, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया ये जो ऑब्जेक्ट था इसका इमेज तो यहीं पे बन गया, राइट, और दूसरे का इमेज कहाँ बना, बिटवीन सी एंड एफ, करेक्ट, राइट। तो बाय द वे फोकल लेंथ 10 था, रेडियस 20 था, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 10। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 10 से कम, 10 से कम। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा अभी ऑप्शन नंबर सी और डी में से एक, वो देखते हैं, राइट। अब कैसे करोगे, तो अब पहले V2 फाइंड करो। V2 कैसे फाइंड करते हैं, 1/f, f2 मत लिखना, मिरर एक ही है, 1/f इज 1/v प्लस 1/u, 2 and 2, 1/v2 equal to 1/f minus 1/u2 using sign conventions, using sign convention। V2 फाइंड करना है तो do not use sign convention, focal length is negative, object distance is also negative, correct। तो ये आ जाएगा 1/v2 equal to minus 1/f plus 1/u2। What is 1/f? What is f value? 10. 10 था ना? Yes. What is u2? 30. तो इसको 1/30 minus 1/10, सिंपल है। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, जो आपको पसंद आए वो। 10 minus 30/10 into 30. How much is this? minus 20/300, मतलब कितना, -1/15, मतलब V2 इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। मैंने पहले बताया था ये कितना आएगा, -20, राइट। मैं अगर मॉड की बात करता हूँ
मॉड्यूलस रिमेंबर। और लेंथ कैसे फाइंड करते हो? टेल मी वन थिंग, अगर मेरे पास 2 पॉइंट है, लुक ये अच्छे समझ लेना, बहुत काम में आएगा। हमारे पास 2 पॉइंट है ए और बी, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, अगर ये डिस्टेंस है x2, ये डिस्टेंस है x1, तो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए? तो वही है ना, व्हाट इज लेंथ ऑफ इमेज? लेंथ ऑफ इमेज क्या आएगा? v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। व्हाट इज v2? 20, v1 इज 15, तो कितना? 5 सेंटीमीटर। अगर आप नेगेटिव लेते तो क्या फर्क पड़ता? ये नेगेटिव होता, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता, तो क्या बनता? -5। -5 का मतलब क्या है? इन्वर्टेड, राइट? तो डजंट मैटर, तो यू जस्ट हैव टू डू दिस। तो 5 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द इमेज। तो 5 सेंटीमीटर ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी।